So chapter number 13, directing. The managerial function of directing is like the activities of the teacher is in a classroom. ठीक है, इस तरीके से मैनेजरियल फंक्शन जो डायरेक्टिंग का है वो इस तरीके की एक्टिविटीज जो होती है जो टीचर इन अ क्लासरूम जो परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू टीच. ठीक है, अ टीचर हैज टू गाइड हिज स्टूडेंट्स, maintain discipline, inspire them, lead them to desired goal. It is very important function in the management of any enterprise. ठीक है, इतनी सारी चीजें एक टीचर एक क्लासरूम में ये चीजें करती हैं to inspire the students, उनके गोल के लिए उन्हें उनको लीड करना, ठीक है, उनको गाइड करना, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना. सो वैसे ही सेम टू सेम मैनेजर को भी वो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मैनेजमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज. इट हेल्प्स द मैनेजर in ensuring quality performance of job by the employees and achievement of organizational goals. It involves supervision, communication, providing leadership to the subordinates and motivating them to contribute to the best of their capabilities. ठीक है, उनको सुपरवाइज करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना, सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना, ठीक है, कि वो अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे. In this lesson we will learn about the functions in detail. ठीक है, let's see meaning of directing. While managing an enterprise, manager have to get things done to the people. लोगों के पास से वर्क करवा लेना होता है, ये इनका वर्क होता है. ठीक है, मैनेजर्स का. In order to be able to do so, they have and undertake many activities like guide the people who work under them, जो उनके अंडर वर्क करते हैं उनको गाइड करना, इंस्पायर करना, लीड देम टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लीड करना. एन ऑफिस मैनेजर फॉर इंस्टेंस हैज टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. एग्जांपल, टाइपिस्ट, ऑफिस असिस्टेंट, dispatchers, account clerks, etc. He has to issue instructions to them and describe and illustrate the work and related activities. He has to tell them what to do, how to do it. ठीक है, ये सारी चीजों को बोलना. The office manager can plan organize and appoint people, but cannot get things done. ठीक है, unless he assigns specific duties to the subordinates, motivates them to perform well. All these activities of a manager constitute the directing function. ये सारी जो activities है उसको हम लोग directing function बोलते हैं. ठीक है, ये इसका पार्ट बनता है. Thus, directing is concerned with instructing, guiding, supervising, inspiring people in the organization to achieve its objective. It is a process of telling people what to do and seeing that they do it in the best possible manner. The directing function thus involves, क्या चीज़ involve करता है? Telling people what is to be done. लोगों को बोलना कि क्या चीज़ करनी है, what is to be done. Explaining to them how to do it. और फिर उनको explain करना कि किस तरीके से वर्क करना है. Issuing instructions को issue करना and order to subordinates to carry out their assignment as schedule. इसके शेड्यूल के हिसाब से उनको सबऑर्डिनेट्स को ये वर्क allocate करना. Supervising their activities और फिर जो वर्क उनको दिया है उसको सुपरवाइज भी करना. Inspiring them to meet the manager's expectation, उनके मैनेजर की expectations जो भी उसको fulfill करना and contribute towards the achievement of organizational objective. और क्या करना कि organization का जो भी goal है उसको अचीव करने के लिए उन लोगों को सभी को गाइड करना. Providing leadership provide करना. Manager plan to take decision. They organize to define the work and create suitable position in the enterprise. People are employed to perform their jobs, but the actual work of getting the job done comes under the directing function. मतलब कोई भी चीज उनको allocate की होती है, but वो तभी fulfill हो पाती है, तभी successful हो पाती है जब उनको proper guidance मिली हो. Directing मिला हो. Directing is management in action. It is through the exercise of this function that managers get things done through people.
द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, प्लान्स रिमेन्स मेरी प्लान्स अनलेस दे आर पुट इनटू एक्शन। जब तक वो प्लान्स को हम लोग एक्शंस में नहीं कन्वर्ट करते हैं तब तक उनको मेरी प्लान्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जब तक उनको एक्शंस में नहीं किया हो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट न किया हो। इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन subordinates will have no idea as what to do। अगर डायरेक्टिंग एब्सेंस है, मतलब डायरेक्टिंग नहीं है उनके सबऑर्डिनेट्स को, तो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट सारे क्या होंगे, उनके पास कोई आइडिया नहीं होगा that what to do, कैसे करना है। They will probably not be inspired to complete the job satisfactorily। मतलब वो उन लोगों को इंस्पायर भी नहीं किया होगा किस तरीके से satisfactorily वर्क कंप्लीट करना है। Implementation of plans is thus largely concern of directing function। As a function of management, directing is useful in many ways। Let's see, it guides and helps the subordinate to complete the given task properly and as per schedule। ये गाइड करता है और हेल्प करता है सबऑर्डिनेट्स को कि किस तरीके से उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल अचीव करने के लिए शेड्यूल बनाया हो उसको कैसे फुलफिल करना, कंप्लीट करना। It provides the necessary motivation to the subordinates to complete the work satisfactorily and strive to do them best। मोटिवेशन प्रोवाइड करता है उनके सबऑर्डिनेट्स को कि उनका जो टास्क है उसे कंप्लीट करना। It helps in maintaining discipline and rewarding those who do well। इसके साथ साथ उनको डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है और रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करना है। Rewarding those who do well, जो अच्छा वर्क करते हैं उन लोग को रिवॉर्ड भी देने हैं। Directing involves supervision। डायरेक्टिंग सुपरविजन एक डायरेक्टिंग का पार्ट है, which is initial to make sure that the work is performed according to the orders or instructions। ये इसलिए जरूरी है, इससे पता चलता है कि जो भी हमने वर्क किया है वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस हुआ है, जैसा हम लोगों ने प्लान किया था वैसे के वैसे हुआ है या नहीं हुआ है। Different people perform different activities in the organization। All the activities are interrelated in order to coordinate the activities carried out in the different parts and to ensure that they are performed well। Directing is important, ठीक है, directing important है। Thus helps to integrate various activities and so also the individual goals with organizational goals। ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटररिलेटेड, वो सारी की सारी क्या होती है, इंटररिलेटेड होती है। इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना हो तो कैरिड आउट द डिफरेंट पार्ट्स टू इंश्योर दैट दे आर परफॉर्म वेल। ठीक है, वो अगर अच्छे से परफॉर्म किए होंगे तो ही। डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। कब होगा ये, जब डायरेक्टिंग किया हो तब ये सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, इसलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स टू इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटीज। इसकी वजह से क्या होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है और प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली चलती रहती है। सो आल्सो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल का गोल हो वो अचीव कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो उसको भी अचीव कर सकता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडरशिप। डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप आता है। दैट इनिशियल हेल्प्स इन क्रिएटिंग एप्रोप्रिएट वर्क एनवायरमेंटल एंड बिल्ड अप टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट भी बनाया जाता है। Communication, supervision, motivation, leadership are the four initial elements of directing। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, सुपरविजन होता है, उसके साथ मोटिवेशन और साथ साथ में लीडरशिप, तब जाके ये फोर इनिशियल एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग का। ठीक है, in this subsequent sections we shall discuss about the nature and significance of each of this component। Let's see, let's start with communication। Communication is a basic organizational function which refers to the process by which a person transmits information or a message to another person। The purpose of communication in the organization is to convey orders, instructions, information so as to bring desired changes in the performance and or the attitude of the employees in the organization। Supervisor transmit information to the subordinates। Proper communication result in a clarity and securing the cooperation of subordinates।
Faulty communication may create problems due to the misunderstanding between the superior and subordinates. The subordinates must correctly understand the message of conveyed to them. ठीक है, मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन? क्या है कम्युनिकेशन? इन्होंने इस तरीके से बताया, refers to the process by which a person ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, मैसेज को टू द अनदर पर्सन। ठीक है, द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? टू कन्वे द ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जो भी डिजायर चेंजेस है वो हम लोग ला सके। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन किया जाता है। एक पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन को कुछ ऑर्डर्स को पास करता है किसी और को। ठीक है, किसी के माइंड में ये जनरेट होता है, जनरेट इन द सेंस के उसके माइंड में उसने ये सोचा, उसने किसी और को कहा, फिर वो चीज किसी और को पास ऑन हो रही है। दिस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसके साइड से उस सेम का रिप्लाई आ रहा है। दिस इज द कम्युनिकेशन जस्ट टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंजेस इन द परफॉर्मेंस। ठीक है, टू कम्युनिकेट विद ईच अदर्स एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशंस। क्या द सुपरवाइजर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट्स। जनरली सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको ये ऑर्डर्स वगैरह पास ऑन करते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहा, क्लियरिटी नहीं रही, तो कॉपरेशन क्या रहेगा? प्रॉपर कम्युनिकेशन रिजल्ट इन अ क्लियरली सिक्योरिंग द कॉपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर अच्छे से मतलब हर एक चीज को कन्वे की होगी, अगर हर एक वर्ड्स प्रॉपरली कम्युनिकेट किए होंगे, अंडरस्टैंड सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंड कर रहा है उस कम्युनिकेशन को, सो क्या होगा कि कॉपरेशन बना रहेगा। फॉल्टी कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर सुपीरियर ने सही तरीके से भी, सही वर्ड्स में भी वो ऑर्डर्स को पास नहीं किया होगा, सो उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे और कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। कोऑर्डिनेशन मस्ट करेक्टली अंडरस्टैंड द मैसेज कन्वेड टू देम। Thus in a communication there are two parties. One is known as sender, another is known as receiver. एक कम्युनिकेशन में दो पार्टीज होती है, एक तो सेंडर जो भेज रहा है और एक होगा सामने रिसीवर जो सुन रहा है। ठीक है, there is a message sent by the sender to the receiver and the receiver receives the message and understand it. एक पर्सन ने उसको बोला, पर्सन ए ने बी को बोला, बी ने उस सारी चीजों को समझा, जाना और उसने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, this is the communication. Communication does not always flow from supervisor to subordinates only. It can also be from subordinates to supervisor. For the example, subordinates can pass information to the superior about the faulty problems at the assembly line. Thus it two-way process. तो ये communication क्या है? ये two-way process है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट्स को वन वे ही ये जो प्रोसेस होता है ये चले, कम्युनिकेशन जो होता है वो हो। सबऑर्डिनेट्स भी सुपीरियर को अपनी जो भी चीजें हैं, जो भी वो फील करते हैं, जो भी प्रॉब्लम या फॉल्टी जो भी लग रहा है उनको असेंबली लाइन में, सो वो अपने सुपीरियर को बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज लाइन पे वर्कर्स मतलब सबऑर्डिनेट्स ही कर रहे होते हैं, ना कि जो सुपीरियर होता है वो। सुपीरियर सिर्फ उनको गाइडलाइंस देता है, बट इन बिटवीन अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सो वो सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स को ही पता होती है कि मशीन में क्या प्रॉब्लम हुआ, सो वो चीजें सुपीरियर को पहुंचा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सेड टू बी लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेस ऑफ डायरेक्शन largely depends on how effectively the manager can communicate with the subordinates. कितने effectively मैनेजर जो है डायरेक्ट सक्सेस ऑफ डायरेक्शन लार्जली डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितने बेटर तरीके से एक मैनेजर ने उसके सबऑर्डिनेट्स को अपनी सारी बातों को बताया, अच्छे से उनके सामने रखी। प्रॉपर कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द लेवल्स बिटवीन द ऑल लेवल कैन इंप्रूव बोथ क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ये अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहा तो क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी आउटपुट में इंक्रीज देखने मिलेगा। Some of the benefits of communication are as follow. Let's see the benefits. Communication helps employees to understand their role clearly and perform effectively. Communication की वजह से क्या होगा? Employees को अब पता चलेगा कि उनका रोल क्या है, clearly उनको perform क्या कर रहा है, तो वो सारी चीजें वो perfectly कर पाएंगे effectively. It helps in achieving the coordination. अब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी, which in return leads to the industrial harmony
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इन सारी चीजों की वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा और हार्मनी बढ़ेगी। Communication improves managerial efficiency and ensure cooperation to the staff. Effective communication helps in modeling attitudes and building up the employees' moral. Employees के moral को भी बढ़ाता है. Communication it means is the means through which delegation and decentralization of the authorities successfully accomplished in the organization. जो भी हम लोग अथॉरिटीज को डेलीगेट करते हैं, डिसेंट्रलाइज करते हैं, वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन कैन बी मेड फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइजर एंड आल्सो बिटवीन टू सुपरवाइजर्स एंड सेम लेवल। ठीक है। इफ आई से कि जैसे सबऑर्डिनेट्स हैं, वर्कर्स जो है, वर्कर्स उनके सुपरवाइजर को अपनी बात कहते हैं। सुपरवाइजर्स उनके ऊपर से जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो सुपरवाइजर्स को मिलते हैं, वो सुपरवाइजर्स उनके वर्कर्स को देते हैं। एट द सेम टाइम डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों हुआ, सेम लेवल पे भी बातें कम्युनिकेशन होता है। सुपरवाइजर डिफरेंट लेवल डिपार्टमेंट्स के सुपरवाइजर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जो सेम लेवल कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डन ऑरली, उसको ऑरली भी किया जा सकता है, इन रिटर्न आल्सो, थ्रू द गेस्चर्स एंड पोस्चर्स आल्सो। कम्युनिकेशन में मेड थ्रू द फॉर्मल, इनफॉर्मल channels. Thus, variation types of communication are as follows. Let's see in detail. First one is formal communication and informal communication. We have two basic channels. एक तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑफिसेज वगैरह में होता है, बिजनेस में जो होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ जो हम लोग करते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे बेसिस, इसके बेसिस पे फॉर्मल में क्या होता है, अपवर्ड ही होता है, जनरली अपवर्ड ही रहेगा फॉर्मल में। इनफॉर्मल में अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सारे हैं। वर्बल, ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल, गेस्चरल, पोस्चरल। ओरल रिटन तो हमें पता है कि ओरली जो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे से, हम लोग मैं किसी को बोल रहा हूँ, सामने वो मुझे रिप्लाई दे रहा है, दिस इज एन ओरल कम्युनिकेशन। जनरली हम लोग दो फ्रेंड्स, हमारा फैमिली मेंबर्स के साथ करते हैं, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम लोग कहे तो ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। रिटन हम लोग ईमेल्स थ्रू, लेटर्स थ्रू जो भी कम्युनिकेशन करते हैं। इफ आई से वी चैट ऑन द व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडिया, तो चैटिंग भी जो है वो रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गेस्चर, पोस्चर में बताऊं नॉन वर्बल के, जिसमें वर्ड्स नहीं, ओरल नहीं, रिटन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ गेस्चर्स और पोस्चर्स से। इफ आई से लाइक इफ आई शो द थंब, तो उसका मतलब क्या होगा कि हाँ, ही इज रेडी, ही इज ओके विद द सेम कंटेंट। मतलब ठीक है, अगर मैं ना बोल दे रहा हूँ, अगर मेरा फेस हिला कर अगर मैं ना बोल रहा हूँ, सो हाँ, आई डोंट वांट टू, मतलब मैं ना कह रहा हूँ कि नहीं भाई अब यहाँ पे इस चीज को हम लोग अभी फिलहाल ये चीज को नहीं करना है, या वगैरह जो भी हो, ये प्रोडक्शन अभी नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चीज के लिए हम लोग गेस्चर्स, पोस्चर्स में रिप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप इन डिटेल इसको अगर जानना चाहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो आप इन डिटेल जा सकते हैं ऑन YouTube, you will get the lots of videos over there. फॉर्मल और इनफॉर्मल देख लेते हैं विद द कंटेंट। अगर कंटेंट वाइज देखना है तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, the path through which formation flows is called channel of communication. In every organization we have both formal and informal channels. हमारे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दोनों मिलेंगे। The path of communication which are based on the relationship establishment formally by management are the formal channel. ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मल चैनल बोल सकते हैं। जैसे कि जनरल मैनेजर कम्युनिकेट थ्रू डिसीजन टू द प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, जनरल मैनेजर जब प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन रिलेटेड, तो ये क्या होगा, फॉर्मल होगा। Who may then issue orders, जो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस लेते हैं टू द फॉरमैन। इट मे आल्सो बी लाइक अ वर्कर अप्लाइंग टू अ सुपरवाइजर और अ लोन फ्रॉम द जीपी ऑफ अकाउंट। ठीक है,
he and she forwards it to the manager accounts, who finally send it to the general manager finance for the approval. ठीक है, ये सारा क्या होगा, फॉर्मल होगा. Let's see. Communication which takes place on the basis of informal or a social relationship among the staff. It's called informal communication. For example, any sharing of information between the production supervisor and an accountant. ठीक है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर और अकाउंटेंट का वैसे तो कुछ मतलब वो नहीं होता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो वर्कर्स के साथ ही उनका कम्युनिकेशन होता है जनरली, बट ये अकाउंटेंट के साथ अगर कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है तो इनफॉर्मल पार्ट होगा. एज दे हैपन टू बी फ्रेंड्स, मे बी दे आर फ्रेंड्स, तो और सो मोस्टली इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड टू ड्यू टू द फ्रेंडली इंटरैक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये जनरली इनफॉर्मल होगा, जो फ्रेंड्स के साथ, जैसे मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ जो हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं वो वाला इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल जो होगा फ्रेंडली होता है इंटरैक्शन मेंबर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के. इनफैक्ट इट मे बी अ प्योरली पर्सनल और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल मैटर. ठीक है, let's see the upward, downward and horizontal diagonal communication. On the basis of flow of direction of communication in the organization, it can be classified as upward, downward, horizontal and diagonal. When employees make any request, appeal, report, suggest or communicate ideas to the superior. The flow of communication is upward. ठीक है, मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनके सुपीरियर को, सो वो अपवर्ड रहेगा, नीचे से ऊपर की तरफ. वर्कर्स फिर उनके सुपरवाइजर उनके सीनियर्स को इस तरीके से अपवर्ड रहेगा. From bottom to top, this is the perfect word, bottom to top. For instance, when a typist drop a suggestion in the suggestion box or a foreman reports breakdown of machinery to the factory manager, the flow of communication is upward. ठीक है, तो इसको हम लोग upward बोल सकते हैं. Upward communication encourage employees to participate actively in the operations of their department. They get encouraged and their sense of responsibility increases when they are heard by their supervisors about problems affecting the jobs. ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है बॉटम टू टॉप में, सो क्या होगा, अपवर्ड वाला होगा. When communication is made from supervisor down hierarchy, it is called downward communication. For instance, when supervisor issues orders and instructions to the subordinates. ठीक है, जब भी सुपरवाइजर कुछ भी ऑर्डर्स उनके ऊपर से आए होते हैं और वो उनके सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन करते हैं, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. जैसे कि जनरल मैनेजर्स ने ऑर्डर दिए सुपरवाइजर टू वर्क ओवरटाइम, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज डाउनवर्ड. जनरल मैनेजर जो होते हैं वो सुपरवाइजर्स को बोलते हैं कि अभी ओवरटाइम करना पड़ेगा, सो वो क्या होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डाउनवर्ड. ठीक है, जैसे कि फ्रॉम ऐसे हम लोग बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम. सिमिलरली कम्युनिकेशन ऑफ वर्क असाइनमेंट्स, notice, requested for performance, etc. through bulletin boards, memos, reports, speeches, meetings, etc. are all form of downward communication. तो इसको हम लोग downward communication बोल सकते हैं. Communication can also be among member at the same level. ठीक है, same level वाले communication भी करते हैं. जैसे कि production manager may communicate with the production plan to the sales manager. प्रोडक्शन प्लान के बारे में सेल्स मैनेजर के साथ बात कर रहा है. दिस इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब सेम लेवल के, उनकी पोजीशन सेम ही होती है. हियर द कम्युनिकेशन इज अमंग पीपल ऑफ द सेम रैंक एंड स्टेटस. उनका रैंक और स्टेटस सेम ही होता है. सच कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एट इंटरडिपेंडेंट. जो एक्टिविटीज इंटरडिपेंडेंट होती है सब ये हॉरिजॉन्टल होता है. व्हेन कम्युनिकेशन इज मेड बिटवीन पीपल हु आर neither in the same department nor at the same level of cooperation hierarchy, it is called diagonal. ठीक है, ना तो उनका सेम पोजीशन है वर्क करने का, ना तो वो सेम डिपार्टमेंट के हैं, बट फिर भी they were communicating, so हम लोग उसको बोलते हैं diagonal communication. जो एक डिपार्टमेंट वाला पर्सन दूसरे डिपार्टमेंट वाले पर्सन से बात कर रहा है. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट अकाउंटेंट may request to report from sales representatives not to the sales manager for the purpose of distribution cost analysis. This type of communication does
टेक प्लेस अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ये इस तरीके का डायगोनल कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। लेट्स सी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड यूज्ड। कम्युनिकेशन में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। While communicating, managers may talk to their subordinates either face to face or on the telephonic, or they can send letters, issues notice or memos। ठीक है, इतनी तरीके से मैनेजर जो है वो बात कर सकता है। ठीक है, टेलीफोन थ्रू बात कर सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन बात हो सकती है, और उनको लेटर सेंड कर सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं, मेमोज दे सकते हैं। देयर आर ऑल वर्बल कम्युनिकेशन। इस सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे वर्ड्स का यूज हुआ है। ठीक है, जहां पे वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, रिटन में कर रहे हो, ओरल में कर रहे हो, वर्ड्स यूज हो रहे हैं, अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, वर्ड्स यूज हो रहे हैं, सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। Thus, verbal modes of communication may be oral or written। इसलिए हम लोग इसको oral भी बोल सकते हैं, written भी बोल सकते हैं। Face to face communication, as in interview, meetings, seminars, example of oral communication। ठीक है, issuing orders and instructions on telephone or through communication system is also an oral communication। The written modes of communication includes letter, circulars, notice, memos. Sometimes verbal communication is supported by non-verbal communication such as facial expressions, body gestures, for example, wave of hands, a smile or a frown, etc. This is also termed as a gesture communication। तो ये सारा किसका पार्ट होगा? gesture communication का। ठीक है, अगर किसी ने कुछ बात बोली और हम लोग उसको स्माइल वी जस्ट गिव द स्माइल। ठीक है, सो हाँ, वो सोचेगा कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, ये हमारे साइड से मतलब बोलेंगे, मतलब इनको भी ये चीज अच्छी लगी होगी तभी इन्होंने स्माइल किया। अदरवाइज उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता। ठीक है, मतलब अगर वो सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है एंड विच मतलब हमको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, हमारे कुछ वियर्ड रिएक्शंस देख के भी वो समझ जाएगा कि मतलब इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। सो दिस कैन बी द पार्ट ऑफ फेस टू gestural communication। ठीक है, यहाँ पे होता है बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कुछ बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, हम लोग देखते हैं। एडवर्सली अफेक्ट कम्युनिकेशन, जैसे कि semantic barriers। There are the barriers take place when the sender and receiver of the message interpret the words, sentence, symbols, etc। interpret कर देते हैं symbols with a different meaning। ठीक है, मतलब बहुत बार क्या होता है, सिंबल्स भेजे हैं बट उसका मीनिंग कुछ और भी निकल रहा होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उसका सामने वाले ने मीनिंग कुछ और निकाला हो। सिंबल्स विद अ डिफरेंट मीनिंग। अ वर्ड मे बी डिफरेंट मीनिंग, फॉर एग्जांपल मिनट, टाइम और स्पेल। ठीक है, एक जैसे कि वर्ड है फॉर एग्जांपल मिनट, ये मिनट वर्ड है। ठीक है, इसका टाइम भी और स्मॉल भी इस तरीके से मिनट, तो टाइम का भी वो हो रहा है प्रेजेंट और स्मॉल का भी प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो होते हैं टाइम, स्मॉल, बिग, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, जो सिंबल्स जो होते हैं, वो सामने वाले को मे बी हैव अ डिफरेंट मीनिंग, इसके डिफरेंट मीनिंग्स भी निकल रहे होते हैं। ठीक है, badly expressed message, same time manager may use wrong words, managers may omit needed words। ठीक है, मैनेजर समटाइम्स यूज बैड वर्ड्स, तो वो बैडली एक्सप्रेस्ड होते हैं, जो वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं तो फॉर प्रेजेंटिंग कोई भी चीज को अगर उनको प्रेजेंट करनी है उनके सामने। फॉल्टरिंग ट्रांसलेशन, जो समझाना कुछ और था, समझा कुछ और दिया। ठीक है, द मैनेजर रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर एंड ट्रांसफर इट टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। कुछ भी हमने रिसीव किया ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस और वो हमने ट्रांसफर किया हमारे सबऑर्डिनेट्स को। मैनेजर ट्रांसलेट इट टू ऑल द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उन्होंने समझा और सामने वाले को समझा रहे हैं। If the receiver of information makes a faulty translation, अगर वो गलत समझे हैं तो वो सामने दूसरे 10 लोगों को भी गलत ही समझाएंगे। Can be barrier in the communication। तो ये बैरियर हो सकता है क्योंकि जो भी जनरल मैनेजर हैं उन्होंने कुछ ऑर्डर बनाया, उन्होंने कुछ रूल बनाया। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी है टू द सुपरवाइजर टू पास देयर 50 मेंबर्स थ्रू 50 सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब जनरल मैनेजर डायरेक्ट ही वो क्या बोलते हैं वर्कर से डायरेक्ट ही उनको कम्युनिकेट नहीं करेंगे,
इन बिटवीन वो क्या करेंगे, सुपरवाइजर को ये सारे ऑर्डर्स पास करेंगे कि आपको अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ बात करनी है। बट सबमिसिव वर्क जो सुपरवाइजर है उन्होंने थोड़ा कुछ गलत समझा या फिर गलत सुन लिया एट द टाइम, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ थर्सडे ही हर्ड फ्राइडे, और कुछ डेट में वेरिएशंस अगर उन्होंने गलत सुन लिया है, समझ लिया है अपने हिसाब से, सो वो क्या करेगा, दूसरे जो 50 लोग हैं उन लोग को भी अपना समझा हुआ वो एक्सप्लेन करके आएंगे। सो कि सारा का सारा जो कम्युनिकेशन होगा वो फॉल्टी ठहरेगा। Unclear assumptions. Sometimes a sender takes it for granted that the receiver knows some basic things. So sender may communicate him only about the major subject. This may be a barrier in the effective communication. So कुछ बार ऐसा होता है जो सेंडर होता है वो it for granted, मतलब हाँ ये तो हमेशा का है, एंड लाइक ये जो भी बोलेगा मतलब एक्स्ट्रा ही बोलेगा, तो वैसा समझ कर हम लोग सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं, ये एक्स्ट्रा ही मतलब ज्यादा का कुछ बोल रहा है, पर वो ज्यादा का बोलने के बीच में वो कुछ इंपॉर्टेंट बोल गया जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से क्या होगा, बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में एक बैरियर का पार्ट बन जाएगा। Psychological barrier appears because of the state of mind. Let's see. First one is lack of attention. When the receiver is engaged in some important work, he does not listen to the message attentively. This lack of attention will barriers to the effective communication. ठीक है, मतलब वो कुछ बिजी वर्क में बिजी हैं और वो कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पास हो रहे हैं और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। So this is just only because of lack of attention कि particular person का उधर attention नहीं था। ठीक है, loss by the transmission and poor retention. When communication passes through various levels, ठीक है, वेरियस लेवल से पास होता है कम्युनिकेशन, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज मे रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब क्योंकि वो लाइक सुपर जनरल मैनेजर से स्टार्ट होते हुए वो नीचे आ रहा होता है डिफरेंट लेवल्स तक पहुंचकर। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द सीईओ ने कुछ पास किया, ठीक है, वो उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे जनरल मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर वर्कर्स, फिर ठीक है फॉरमैन, इस तरीके से जब आ रहा होता है इन बिटवीन अगर किसी ने भी एक ने भी बोलने में गलती की तो उसके आगे की पूरी जो लाइन है वो सभी को वो रॉन्ग मैसेज मिलेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जनरल मैनेजर ने उनके जो सुपीरियर है उनके पास से इंस्ट्रक्शंस जब सुनते वक्त उन्होंने अगर मैं छोटी सी बात करूं, इफ दे टॉक्ड अबाउट 4 आवर्स और 10 आवर्स एक्स्ट्रा आवर्स की बात चल रही हो, 4 आवर्स अटेंड करना है और उन्होंने गलत सुन लिया 8 आवर्स अटेंड करना है, सो वो 8 आवर्स वाली बात वो कंटिन्यू चलेगी अप टू द वर्कर्स। ठीक है, वर्कर्स तक ये 8 आवर की बात पहुंचेगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। Premature evaluation, sometimes a receiver of information makes a judgment before listening to the entire message. This is a hindrance in the exchange of information. ठीक है, मतलब पूरी बात सुने पहले ही अपना खुद ने assumptions कर लिए, ठीक है, जजमेंट ले लिया, ठीक है, सो उसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है इंफॉर्मेशन चेंज करके। डिस्ट्रस्ट, the receiver and the sender of information do not trust each other. ठीक है, रिसीवर और सेंडर दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, they cannot understand each other's message in its original sense. तो जब तक एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे के कहना क्या है और वो क्या बोलना चाहते हैं उस चीज को वो समझ नहीं पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स देखते हैं, some organizational और physical barriers put difficulties in the smooth communication. जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रिजिड रूल्स में लीड टू द रेड टेप्सिंग्स, डिले इन एक्शंस एंड डिले इन द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, गलत रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं या फिर बना दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं, वर्किंग स्मूथ नहीं चलता है। सेकंड वन स्टेटस, समटाइम्स हायर मैनेजर्स इन द रैंक हायर रैंक may not pass all the information to the manager of the lower rank. ठीक है, sometimes ऐसा होता है कि हायर लेवल पे वर्क करने वाले सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोअर लेवल मैनेजर्स को नहीं बता देते हैं। ठीक है, बिकॉज एज दे आर वर्किंग ऑन द स्टेट, उनका एक प्रॉपर प्रोफाइल होती है, स्टेटस होता है अच्छा, तो वो कुछ चीजें अपने तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, हर एक चीज नहीं शेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, इन अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन all important information is retained at a top level officers only. ठीक है, मतलब बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें
टॉप लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास भी वो सारी न्यूज अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। टॉप लेवल ऑफिसर्स के पास ही होती है, एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वही सारी अपनी जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी ऑर्डर्स है वही पास ऑन कर रहे होते हैं। Complexity in the organizational structure in any organization where there is a number of managerial levels, जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, देयर विल बी अ डिले इन द कम्युनिकेशन, जहाँ पे ज्यादा लेवल्स हो, ठीक है, हेड्स के, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचाने में डिले हो सकता है। इंफॉर्मेशन गेट्स चेंज बिफोर इट रीचेस टू द रिसीवर, जब तक वो रिसीवर के पास आए तब तक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गई होती है। पर्सनल बैरियर्स देखते हैं, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, सुपीरियर्स ट्राई टू कैंसिल इंफॉर्मेशन, सुपीरियर्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैंसिल करने का ट्राई कर रहे होते हैं इफ दे आर फियर ऑफ लॉसिंग देयर अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स, उनके सबऑर्डिनेट्स पे उनकी अथॉरिटी जो है वो लॉस करने का उनको अगर फियर हो, सो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स में अगर फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है तब भी प्रॉब्लम होता है। टॉप लेवल ऑफिसर्स डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस on the competence of their subordinates, so they may not be paying attention to their advice, तब उनके एडवाइस पे वो ध्यान नहीं देते हैं। Third is unwilling to the communist, unwilling होता है, subordinates may not be willing to communicate with their superiors if they believe that it may adversely affect their interest, ठीक है। जब वो ऐसा मानते हैं, it may जैसे कि उनके subordinate जो है may not be willing, वो willing नहीं है to the communicate with their superior, उनके superior के साथ बात करने में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, willing नहीं है। If they believe that they may be adversely affect their interest, मतलब उनकी जो वो जो चाहते हैं तो वो शायद उसको अफेक्ट हो सकता है उनके कह देने से, उनके कुछ भी उसके ऊपर कमेंट करने से, तो वो उनके इंटरेस्ट पे अफेक्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के। Lack of proper incentives, for example, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, so if a particular employee he wants some leave for, he wants some holiday for 1 or 2 days, और मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि उनके सुपरवाइजर को अगर वो बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, सो अगर उन्होंने ना बोल दिया, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सो उनको पता भी चलेगा और प्लस कि उनके रिजेक्ट कर दिया तो उनका इंटरेस्ट भी मतलब नहीं रहेगा, मतलब कि उनकी जो बात है वो जो चीज चाहते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन वो चीज फुलफिल नहीं हो पाएगी। इससे बेटर है किसी और पर्सन को उनके सेम लेवल पोजीशन वाले स्टेटस वाले पर्सन से बात करें जिसके साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग हो, अगर हम लोग ऐसा बोले तो ये सही रहेगा, ठीक है। मतलब अनविलिंगनेस जो होती है वो, lack of proper incentive, the lack of incentive to the subordinates can be the affect their suggestions and are not to be given any importance, incentives भी अगर properly न दिए जाए, ठीक है, lack of incentive to the subordinates can be the fact that there is a suggestions are not given, तो suggestions नहीं दिए जाते और उनको importance नहीं दिए जाते हैं। How to overcome this barriers, इनको ओवरकम कैसे किया जाए, ठीक है, इतने सारे बैरियर्स हमने देखे, इन सभी को ओवरकम कैसे किया जाए। लेट्स सी, कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, उस चीज को कंसल्ट करो उसको कम्युनिकेट करने से पहले। If the subordinates are allowed to participate in the development of the message to communicate it, they will be accept it and will have a committee to implement it. Therefore, it is better to involve others in developing the message. उस मैसेज को डेवलप करने में दूसरों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दूसरे की भी सजेशंस से क्या हो सकता है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें अगर सामने वाला क्या सोच रहा है वो भी समझेगा और उसके खुद के सजेशंस देगा, तो इट विल बी बेटर कि हम लोग किसी और की सजेशंस ले। Communicate according to the needs of the receiver. Receiver की needs के बारे में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। The sender of the message should know the level of understanding of the receiver. हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो हमें सामने वाले पर्सन का लेवल समझना पड़ेगा कि उसका लेवल क्या है, जिस भाषा को हम उपयोग कर रहे हैं, जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, सो वो उनके समझ में आएगा या नहीं आएगा, उन वर्ड्स का ध्यान रखना जरूरी है। वो हम लोग जो कहना चाहते हैं, हमारा मैसेज जो है वो पास ऑन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो the content, basically language and tone of the message should be adjusted to the suit and education and intelligence of the receiver.
ठीक है। जैसे मैंने बताया लैंग्वेज और टोन ऑफ मैसेज प्रॉपर होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग जो हमारा कहना है, जो हमारा मैसेज है, वो इजीली हम लोग पास ऑन कर पाए, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें, अगर कोई कंटेंट कोई भी एक बोर्ड रखा होगा, किसी भी चीज का एक नोटिस लगाई गई, इफ इट इज इन सम अदर लैंग्वेज, वो किसी और लैंग्वेज में होगा, इफ मे बी तेलुगु में हो या फिर उर्दू में हो, तो समटाइम्स क्या होगा, हम लोग वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट लैंग्वेजेस, तो हमें वो पता नहीं चलेगा कि वो क्या मैसेज है। इंस्टेड कि अगर मैं बात करूं इन अवर इंडिया, सो अगर हिंदी में लिखा होगा या फिर इंग्लिश में लिखा होगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था। क्लियरिटी द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, आइडिया को क्लियर कर लेना बिफोर कम्युनिकेशन। द मैसेज टू बी कन्वेड शुड बी एनालाइज्ड इन द डेप्थ बाय द कम्युनिकेटर। उसको पूरा की पूरा एनालाइज कर लेने का, जो भी हम लोग मैसेज देने जा रहे हैं, उस पूरे के पूरे उस मैसेज को समझ लेने का, जान लेने का, उसके बाद ही उसको सामने प्रेजेंट करने का, जिसकी वजह से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई उसके ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं तो हम लोग उसको रिप्लाई देने के लिए रेडी रहे। कम्युनिकेटर शुड बी क्लियर ऑफ द मैसेज, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए उसके मैसेज का। टू बी ट्रांसमिटेड एंड ट्राई टू पास द मैसेज इन द सिंपल वर्ड्स, हो सके उतने सिंपल वर्ड्स में पास ऑन करो, जिसकी वजह से इजीली सामने वाला पर्सन समझ जाए। गुड लिसनर, manager should attend and listen patiently to the employees. This help the employees to mingle freely with the manager, ठीक है। मतलब भले ही कितने अच्छे पोजीशन पे, कितने अच्छे प्रोफाइल स्टेज पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपका कितना भी अच्छा स्टेटस हो, बट यू शुड मस्ट बी द गुड लिसनर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि सामने वाला पर्सन, अगर हम लोग उसकी बात सुन रहे होंगे तो सामने वाला पर्सन अपनी बात अच्छे से समझा पाएगा, वरना अगर उसको सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन आवर कम्युनिकेशन, सो वो मे बी जो शेयर करना चाहता है वो शेयर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, वो फ्रीली फील नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस क्वालिटी शुड मस्ट बी इन एवरी लीडर, एवरी मैनेजर, ठीक है, जिसकी वजह से उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो उनके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर पाए इजीली। प्रॉपर फीडबैक भी जरूरी है। कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मैसेज इज अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, ठीक है। जब मैंने कोई सजेशंस पास किए हैं, कुछ ऑर्डर्स पास किए हैं, सो मुझे सामने से कुछ फीडबैक मिलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि whether they have understood or not. The communicator can ensure the success of communication by asking the question, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन पूछने से क्लियर हो जाएगा कि सामने वाले पर्सन को ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है, जो भी मैंने ऑर्डर पास किए हैं वो। By asking the question about the message conveyed, the receiver should be encouraged to respond the message. तो रिसीवर जो भी होगा वो encouraged होगा वो मैसेज का रिस्पॉन्ड दे। Thus communication becomes two-way process. इसके वजह से कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, two-way process बन जाएगा। Follow up communication, manager should review and follow up instructions given to the subordinates. मैनेजर को हमेशा रिव्यू लेनी चाहिए, फॉलो अप लेना चाहिए इंस्ट्रक्शन का जो भी उन्होंने सबऑर्डिनेट्स को दिया है। दिस फॉलो अप विल हेल्प टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस का यूज ऑफ इनफॉर्मल चैनल्स, द मैनेजर मस्ट मेक यूज टू ग्रैब few find to support the formal channel of the communication. मैनेजर को ये भी चीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा ही फॉर्मली नहीं, कभी इनफॉर्मल होकर भी उनके जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर है, सुपरवाइजर है, सो इनफॉर्मली भी हम लोग हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प टू नो इन डिटेल। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक आल्सो, barriers of the communication and how to overcome these barriers.